अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एक पोइम पढ़ी थी द बैंगल सेलर्स, रिटन बाय सरोजनी नायडू। इस पोइम में सरोजनी नायडू बैंगल्स के बारे में लिखती है, हाउ डिफरेंट कलर्स दे हैव, हाउ दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। किस तरह एक वूमेन बचपन में, जवानी में, शादी के दिन या फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है, किस तरह उसके चूड़ियों के कलर बदल जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं एट पेज नंबर 57। आप अपना जो ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक है आप खोलिए एट पेज नंबर 57 पर। इसके जवाब हम लिखेंगे। पहले क्वेश्चन का जो जवाब है मैंने लिखा है, पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। इसका जवाब मैंने लिखा है द स्पीकर्स इन द पोइम आर बैंगल सेलर्स। दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर द बैंगल्स डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम एंड हु आर दीज बैंगल्स फॉर। The bangles described in the first stanza of the poem are shining, delicate, bright, and colored. They are tokens of radiant lives. These bangles are for happy daughters and happy wives. Then we have question number 3. It is related to similes. Similes जैसा कि आपको पता है is a comparison between two different things by using words as and like. For example, he is as brave as a lion. इस सिमली में एक आदमी और एक लायन को कंपेयर किया गया है। बोथ आर ब्रेव by using word as. इसी तरह हम कह सकते हैं she is like a flower. इस सिमली में एक लड़की और एक फूल को कंपेयर किया गया है। बोथ आर ब्यूटिफुल by using word like. There are different similes in this poem also. बैंगल्स को मुख्तलिफ चीज़ों से कंपेयर किया गया है। इसी के बारे में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। The poet uses different similes for the bangles. What are these? इसका जो जवाब है different similes used for the bangles in this poem are number 1 silver and blue as the mountain mist. इस सिमली में बैंगल्स को माउंटेन मिस्ट के साथ कंपेयर किया गया है। इसको तशबीह भी कहते हैं। नंबर 2 some are flushed like the buds that dream. इस सिमली में बैंगल्स को बड़स के साथ कंपेयर किया गया है। नंबर 3 some are like fields of sunlit corn. इस सिमली में बैंगल्स को फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न के साथ कंपेयर किया गया है। नंबर 4 some like the flame of her marriage fire. Bangles are compared with marriage fire in this simile. Then we have the last one like her bridal laughter and bridal tear. In this simile, these bangles are compared with bridal laughter and bridal tear. Then we have question number 4. Name the different colors of bangles mentioned in the poem. What do these colors represent? Some of the colors of bangles mentioned in the poem include silver, blue, green, golden, purple, gray, etc. These colors represent the different stages of life of women. Then we have question number 6. Now question number 5. The word some has been repeated in the poem for a purpose.
किसी खास मकसद के लिए ये वर्ड सम 6 बार इसमें आता है। किस मकसद के लिए इसको रिपीट किया गया है? अच्छा, व्हाट इज़ इट? The word sum has been repeated many times in the poem. It emphasizes the importance of bangles for women. ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर वुमेन। These bangles have religious and cultural values also. ये हमारे ट्रेडिशन बिल्कुल समाज का एक हिस्सा है, रीत रिवाज है, इसलिए बहुत बार इसमें सम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। Then we have the last question. Explain the following lines. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. In these two lines, यहाँ हम लिख सकते हैं in this couplet. दो लाइन इसको बोलते हैं। In these two lines of the poem, the poet says that some bangles are made for unmarried girls. जो कुंवारी लड़कियां होती है उनके लिए है कुछ बैंगल्स बनी है। They are colored silver and blue, like the mountain mist. They are delicate and fresh. जिस तरह माउंटेन मिस्ट फ्रेश होता है, डेलिकेट होता है, इसी तरह ये बैंगल्स भी होती है। These are delicate and fresh like the mountain mist. इसके बाद है लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में जो पहला क्वेश्चन है एट पेज नंबर 58 पर देखिए आप। रीड द पोइम वंस अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज इन द पोइम। पहला वर्ड है बैंगल सेलर, सनलिट कॉर्न, फ्लेक्ड ग्रे, रेनबो टिंटेड। जो पहला पार्ट है, बैंगल्स आर सेड टू बी एज रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। Number 2, some are like fields of sunlit corn. Then we have third one, some bangles are purple and gold flecked gray. Then we have fourth one, people buy these bangles from a bangle seller. इसी का जो लैंग्वेज वर्क का दूसरा क्वेश्चन है, the poet has used several expressions which form pictures in the reader's mind. That is fields of sunlit corn and circles of light. Pick out more such expressions from the poem. These expressions are called visual images. जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है, what is imagery एक टूल है जो पोइट्स यूज़ करते हैं। They make images with the help of words. इमेज के बहुत से टाइप्स है। फिर विजुअल इमेज होता है, साउंड इमेज होता है जो हम सुन सकते हैं। इसी तरह इसमें भी देयर आर मनी एक्सप्रेशंस, विजुअल एक्सप्रेशंस, जो मैंने बिल्कुल यहाँ लिखा है लैंग्वेज वर्क। मोर सच एक्सप्रेशंस इंक्लूड माउंटेन मिस्ट, दूसरा है वुडलैंड स्ट्रीम, तीसरा है फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, चौथा है मैरिज फायर। इसके बाद है जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, थर्ड पार्ट लैंग्वेज वर्क का, एट पेज नंबर 58 पर देखिए आप। यूज द क्लूज टू कंप्लीट द वर्ड पिरामिड। एक पिरामिड बना हुआ है, इसमें डिफरेंट वर्ड्स है, कुछ लेटर्स इसमें नहीं है, कुछ अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है, आपको ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ए क्राउड, MO सिर्फ लिखा है, इसको सिर्फ B ऐड करना है, ये मॉब बन जाएगा। मॉब एंड क्राउड दीज आर वन एंड द सेम, एक ही हुजूम को कहते हैं। दूसरा है नाइट इंसेक्ट, एक नाइट इंसेक्ट है, इसका नाम बताइए। MOTH, मॉथ। तीसरा है फेब्रुअरी इज द नेम ऑफ, किस चीज़ का नाम है? मंथ, MONTH, मंथ। देन वी हैव फोर्थ वन, शी लव्स यू द बेस्ट, कौन आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है? MOTHER। एक एक वर्ड आपको ऐड करना है। MO सब में लिखा है, बाकी वर्ड आपको ऐड करने हैं। MOTHER, मदर। देन वी हैव फिफ्थ वन, द अर्ली पार्ट ऑफ द डे, सुबह सवेरे जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग इसको कहते हैं। देन वी हैव लास्ट वन, ए वेरी हाई प्लेस टू क्लाइम, बहुत ही ऊंची जगह,
MOUNTAIN, माउंटेन। ये थी लेसन द बैंगल सेरोरस और इसके जो क्वेश्चन थे, लैंग्वेज वर्क भी हमने किया। इसके साथ ही ये लेसन हमने कंप्लीट पढ़ी। इंशाल्लाह कल हम दूसरे लेसन पढ़ेंगे। टिल दैट गुड बाय।